how are you all? I warmly welcome all of you. And today, in this video, we will know about your first chapter, what is democracy and why democracy, from civics section from your textbook SST. So over here, we will discuss about your first chapter, that what is democracy. Actually, the word democracy has been derived from Greek word, and there are two words in Greek. First is demos, second kratos. And these two words has formed the word democracy. Demos, actually demos means common people in English. Demos means common people. Kratos means powerful rule, or a rule full of strength. So we can mark here strength or power. So power of common people. Actually, democracy means power of common people or strength of common people. And this word democracy, firstly, it was formed by a great democrat, Sosthenes. Sosthenes is also known as father of Athenian डेमोक्रेसी. एथेंस की डेमोक्रेसी के फादर के रूप में जाने जाते हैं Sosthenes. And first of all, Sosthenes had used this word democracy. So over here we will discuss that what is democracy. Democracy has derived from two words, demos and kratos. These two words from Greek word. And demos means common people, kratos means strength or power. So actually it means power or strength of common people. सामान्य लोगों की शक्ति, सामान्य लोगों का जो शासन है, जो शक्ति है, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं. Here I would like to define democracy as according to Abraham Lincoln. As you all already know, that democracy is a rule of the people, for the people and by the people. So first, black president of America has defined it. प्रजातंत्र, प्रजा के लिए प्रजा का शासन है. So it is all about rule of common people, rule of citizen, rule of people. As in your textbook it has been simply defined that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So this definition allow us to separate democracy from forms of government that are clearly non-democratic and also democratic. So इससे ये जो परिभाषा है कि that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, इस डेफिनेशन से ये स्पष्ट हो रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा शासन है जिसमें रूलर जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर रूलर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं तो अल्टीमेटली
वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री ही मानी जाएगी। कई बार पीपल जो है सिटीजन ड्यूरिंग इलेक्शन चुनाव तो कर लेते हैं, पर उनकी जो सरकार होती है जिनको वो चुन के भेजते हैं, इलेक्शन के माध्यम से भेजते हैं, वह उनके ऊपर रूल नहीं कर पाते हैं। सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान की एक परिभाषा, एक उदाहरण है इस संदर्भ में कि इन पाकिस्तान एक्चुअली जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री leader, military person. He is in October 1999 में he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में स्वयं को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, अधिकारी जो है पाकिस्तान का। इवन ही वाज अ मिलिट्री जनरल इन मिलिट्री, वह मिलिट्री में सेना अध्यक्ष के पद पर थे। पर मुशर्रफ ने जो है क्या किया, उसने स्वयं को ही मुख्य कार्यकारी देश का घोषित कर दिया। एंड लेटर बाद में उसने संविधान में, पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट करके स्वयं को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया इन 2002 में। और इस घटना ने ये सिद्ध किया कि जो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल की जो थियरी है कि रूलर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इस डेमोक्रेटिक फॉर्म को उसने जो है एक तरह से समाप्त ही कर दिया पाकिस्तान में एट दैट टाइम। एंड इन अगस्त 2002 अगस्त में ही इशूड लीगल फ्रेम वर्क आर्डर, एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर उसने इशू किया जो है दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक परिवर्तन किया, जिस परिवर्तन के तहत एज पर द ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द प्रेसिडेंट खुद डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जो नेशनल असेंबलीज हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जैसे इंडिया में हम लोग लोकसभा और विधानसभा के जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब चाहें उनको जो है डिसमिस कर सकते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच कंप्राइज बाय द मिलिट्री। और वहां पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें मुख्यतः मिलिट्री के लोग होते हैं। वही ये सिद्ध करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और असेंबलीज जो उनकी हैं, जो नेशनल असेंबलीज है, जो प्रोविंशियल असेंबली है, राज्य की जो सभा है, जो राष्ट्र की सभा है, केंद्र की सभा है, उनके जो मेंबर हैं वो डिसीजन फाइनली मिलिट्री करती है। आज भी वहाँ मिलिट्री का शासन सर्वोपरि माना जाता है। मिलिट्री के जो जनरल होते हैं, जो सेना अध्यक्ष होते हैं, वो जब चाहते हैं देश की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। इवन दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल आर बाय द सिटीजन। तो इस तरह का एग्जाम्पल है। वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र केवल जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजातंत्र का निर्माण होता है। कई बार जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बावजूद भी स्वतंत्र प्रजातंत्र का निर्माण नहीं कर पाती है, स्वतंत्र डेमोक्रेसी का निर्माण नहीं कर पाती है। जस्ट लाइक दैट देयर इज ए रेगुलेशन इन चाइना आल्सो। चाइना में देयर इज कम्युनिस्ट पार्टी, जो है वहाँ की सबसे पुरानी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल करती है पूरे चाइना पर।
कहने के लिए वहाँ अदर पार्टियां भी हैं जो चुनाव लड़ती हैं, बट जो वहाँ की मुख्य पार्टी है द कम्युनिस्ट पार्टी, एक्चुअली वो रूल करती है। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होता है टू इलेक्ट द कंट्रीज पार्लियामेंट नोन एज क्वांगो रेमिन दावाओ दवाई एंड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको जो है जाना जाता है दुनिया में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से। द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेस्ट विद द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वही वहाँ के प्रेसिडेंट का जो है चुनाव करती है, निर्माण करती है। और कहने के लिए चाइना भी अपने आप को साबित करता है कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, बट देयर इज नो मोर डेमोक्रेसी, दीज ऑल आर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो वी विल डिस्कस अबाउट government of China, how they form government, does China a democratic or non-democratic country? So see you again in next video. Thanks, have a nice day.